Hello everyone, this is your English teacher from Welkin National School. Today we are going to learn subject English from standard 4th. See the lesson number 27, The Dreadful Guest. Once upon a time, the king of Russia decided to hold a grand feast. He invited princes, rich merchants, brave warriors and all the important people in his kingdom. एक टाइम पे किंग ऑफ रशिया ने डिसाइड किया कि मैं ग्रैंड एक फीस्ट रखूं. ही इन्वाइटेड प्रिंसेस. उसने किसको इन्वाइट किया? प्रिंसेस को, रिच मर्चेंट्स, ब्रेव वॉरियर्स एंड द इम्पॉर्टेंट पीपल्स इन हिज किंगडम. जितने भी उसके किंगडम के जो रिच जो इम्पॉर्टेंट पीपल्स थे उन सबको उसने इन्वाइट किया. ड्रेडफुल मीन्स कॉजिंग फियर और सफरिंग. Next para. On the night of the feast, the king and his guests sat together at a long table in the banquet hall. They talked and laughed and everyone was happy. Banquet means a large formal meal for many people. यहाँ पे उस रात को फीस्ट के रात को वो क्या कर रहे थे? वो लॉन्ग टेबल के ऊपर सब गेस्ट के साथ सेट टुगेदर, एक साथ वो लोग लॉन्ग टेबल के ऊपर बैठे थे इन द बैंक्वेट हॉल. एंड दे टॉक्ड एंड लाफ्ड एंड एवरीवन वाज हैप्पी. वो लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और एवरीवन लुक हैप्पी. सडनली अ ह्यूज एनिमल बर्स्ट इनटू द हॉल. सडनली क्या हो गया? एक एनिमल आ गया. burst into means entered a place suddenly and noise. और suddenly enter होता है उसको कहते हैं burst into. It was a horrible looking dragon. कैसे दिख रहा था? एक horrible dragon के जैसे. It was a tail as a tree, as broad as a house, with teeth like spikes and claws like knives. His skin was hard and scaly, and his eyes red hot flames shot forth from his mouth and black smoke from his nostrils. Now this dragon was also a very mean creature. एनिमल कैसे लग रहा था? ब्रॉड एज अ हाउस के जितना वो ब्रॉड एंड वेरी टीथ लाइक अ स्पाइक्स एंड क्लाउज लाइक अ नाइव्स के जैसे. And the skin was very hard, scaly, and his eyes red hot flames shot forth from his mouth, and black smoke from his nostrils. He loved to be a spoil sport and a killjoy. He walked straight to the head of the table and pushed himself between the king एंड द क्वीन. उसने इस टेबल को ऐसे धक्का मारा. किंग जहाँ पे किंग और क्वीन सामने बैठे हुए थे. एवरीवन स्टॉप टॉकिंग. सब स्टॉप हो गए, बातें कर रहे थे, सब स्टॉप हो गए. एवरीवन स्क्वायर, सब डरे हुए थे. वेल, नॉट एवरीवन. द ब्रेव वॉरियर आइवन वाज नॉट अफ्रेड ऑफ ड्रैगन्स. वहाँ पे आइवन जो बैठा था वॉरियर, वो अकेला ही था, डरे नहीं थे. व्हाट अ रूड impolite creature you are, he said angrily. उसने angrily गुस्से में बोला. What a rude. अब बहुत ही rude हो. और impolite creature you are, he said angrily. Just then the servants brought in the food and set the platters on the table. But before they had a chance to serve the food to the king and the queen and the guests, the dragon began to gobble up everything. The king and the queen did not know what to do. Nobody could stop the dragon. But Ivan spoke up again. Nobody has ever taught you any manners, I can see. He said, I hope you choke on the food you are gobbling up so greedily. जहाँ पे सर्वेंट्स आते हैं किंग और क्वीन को सर्व करने के लिए और गेस्ट को. बट वहाँ पे क्या हुआ रहता है? ऑलरेडी वहाँ पे जो एक ड्रैगन जैसा है, ड्रेडफुल जो है, उसने क्या किया? पूरा
ख़राब किया है उनके टेबल के ऊपर, जो भी है सब घिरा फिरा के सब खा के सब पूरा मैसी करके रखा था। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है और किंग को और क्वीन को कैसे सीव करना है। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था, बस ओनली आइवन था जो उस ड्रीडफुल से जो ड्रैगन है उससे वो बातें कर रहा था, उसको समझा रहा था कि आई होप यू चॉक ऑन द फूड यू आर गॉबलिंग अप सो ग्रीडीली। नाउ दिस वॉज मोर देन द ड्रैगन कुड स्टैंड। ही पफ्ड आउट फायर एंड स्प्रेड टू हिज फीट। उसने क्या किया, वो सब सुन के उसने अपने मुंह से फायर निकाला। I dare you to come out and fight with me, Ivan, he roared. Are you ready? Of course, said Ivan. What have you done, Ivan? Said the king. Let's put up with the dragon for some more time. You cannot fight a dragon. It will burn and kill you in no time. But Ivan was not afraid. उसको वहाँ पे सब राजा जो किंग है क्वीन है उसको कहते हैं कि आपको तो वो जो ड्रैगन है एक सेकंड में आपको खा डालेगा, आप उससे फाइट नहीं कर सकते। बट आइवन इज वेरी ब्रेव वॉरियर। ही वॉज नॉट अफ्रेड विद दैट ड्रैगन। ही न्यू दैट ड्रैगन वर ड्रीडफुल बट नॉट इंटेलिजेंट। उसको पता था ही वॉज वेरी ड्रीडफुल बट ही इज नॉट इंटेलिजेंट। ही वॉज श्योर ही कुड फाइंड वे ऑफ किलिंग द ड्रैगन। उसको पूरा भरोसा था अपने आप पे कि कैसे भी करके ड्रैगन को मार डालेगा। Everyone walked out to the palace courtyard. The dragon and the brave warrior faced each other. The dragon smiled a very mean, that wicked smile. Now, how shall I kill you, you silly fool? He asked Ivan. Shall I burn you to death? Shall I smother you with fumes? Or better still, shall I tear you up with my knife claws, or shall I eat you up with my spiked teeth? वो उसको कह रहा था ड्रैगन कि मैं कैसे खाऊं तुझे, मेरी जो नाखून है उससे तुझे मैं काटूं ये करूं, या मेरे मुंह में से जो आग आ रहा है उससे तुझे जलाऊं। इस तरीके से उसको वो कह रहा था कि मैं तुझे कैसे मारूं। In the meanwhile, however, the clever Ivan had thought of a way of tricking the wicked creature. He folded his arms on his chest and said in clear voice, "Now look here, dragon. When you dared me to fight you, I agreed readily. I thought it would be a fight between just the two of us." Then he pointed behind the dragon. "Why have you brought a whole army to help you fight?" The dragon was as stupid as Ivan thought him to be. He turned his head to see what Ivan was pointing at. Quick as a flash of lightning, Ivan drew his sword and cut off the dragon's head. जैसे वहाँ पे फाइट हो रहा था, एक दूसरे के ऊपर पुश कर रहे थे, तभी आइवन ने एक आइडिया निकाला और उसने कहा कि हम दोनों के अंदर ही फाइट होनी चाहिए। आपने कहा मुझे फाइट करेगा तो मैं रेडी हो गया, तो अभी आप फाइट करने के लिए इतने सारे अपने साथी को लेके आए हो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। तो ड्रैगन इज फुलिश, उसको समझ में नहीं आया कि सामने वाला आइवन जो है वो किसके ऊपर पॉइंट कर रहा है, क्या पॉइंट आउट करके वो बातें कर रहा है, और ही वांट टू नो, उसको देखना था कि पीछे क्या है ड्रैगन को। तो उसने ही टर्न देखने के लिए कि मेरे पीछे कोई है क्या। जैसे ही उसने टर्न किया, आइवन ने क्या किया, उसको अपनी जो स्वॉर्ड है, तलवार है, उससे उसके सर को अलग कर दिया। देयर ही सेड, "वी वोंट हैव टू पुट अप विथ हिज ड्रीडफुल गेस्ट एवर अगेन." उसने कहा कि फिर से हमें इसके कभी भी हमें ये ऐसा ड्रीडफुल गेस्ट नहीं चाहिए, ड्रीडफुल गेस्ट एवर अगेन, हमें कभी भी ऐसा ग्रेटफुल गेस्ट नहीं चाहिए। लर्न दिस लेसन। थैंक यू।